एक मॉल को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले 3 मंत्र आते हैं। एक तो यार बेचो मत, एक ऑप्टिमम लेवल तक ही वो रेंटल लीज रेंट सक्सेसफुल होगा। रियलाइजेशन तब आती है जब आपके ना ब्रांड्स छोड़ते जाते हैं, फुटफॉल गिरने लगती है और आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन में चली जाती है। व्हाई मॉल्स आर नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया इज द लिमिटेशन ऑफ ब्रांड्स। मैं शिप्रा जाओ या सेलेक्ट सिटी मॉल्स, ब्रांड वही थे, खाली उनके मर्चेंडाइज की जो प्लेसमेंट थी वो अलग थी। इन 4 months आई डिड 10,000। दैट वाज द टाइम व्हेन स्टैंजा गॉट देयर फर्स्ट फंडिंग ऑफ 100 crores। कोविड अगर नहीं आता, I think we would have gone for an IPO for Stanza. ये public listed company बन जाती है। बहुत बड़ा shift आने वाला है and उसकी वजह से there are 2 industries which are going to do well. One is this co-living and the other is old homes. India is having 50 million, more than 50 million students or much more than that, a working professional who migrates to different cities every year. This business will only make money if you are above 70% of it. Right? This business will only make कि आप अपने customer acquisition cost को कितना कम रख सकते हैं। जिस भी कंपनी की इंटेंट ये रहेगी कि यार मैंने अपनी सर्विस में इंप्रूव करना है, तो उसके साथ कस्टमर खड़ा है। तो मैं बहुत ब्रेक डाउन करूँ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, राइट? अगर मेरा ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए में एक स्टूडेंट से लूँ, लाइफ टाइम दे कैन पे मी अराउंड मिनिमम ऑफ 15 लाख to 20 lakh. So to get a 20 lakh worth of LTV, lifetime value from a customer, how much cash I'm investing on table? मार्जिन टाइट होने के कारण ऑपरेशंस हिट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू bundle your margins across all the services will help you to sustain yourself in a long term. Kishore Biani wanted to start off his aggressive private label business in easy days. How private label penetration would actually make money in your supermarket business. There is no way in a branded way in a supermarket you make it. आलू, प्याज और तेल किसी घर में पहुंचा दो सस्ता, राइट? एंड देन बिल्ड अप योर मार्जिन्स ऑन शू पॉलिश नहीं चाहिए थी, बट क्योंकि वहां गया तो शू पॉलिश में उठा ली। बिग बाजार ने एसेट लाइट मॉडल पे ही गया, बिकॉज आप देखें जब डीमार्ट और बिग बाजार शुरू हुए थे, आपको बिग बाजार के फुटप्रिंट्स ज्यादा थे, डीमार्ट के कम थे, बिकॉज इंडिया में लैंड खरीदना आसान नहीं है। जॉब में वेल्थ क्रिएशन है, दैट वेल्थ क्रिएशन इज इन स्टार्टअप एंड इज इन ESOP. Hello everyone, welcome to today's another episode of Exchange Talk. Today's conversation is going to be very special as we are talking about 3 different business worlds that have shaped how Indians shop, consume and live. Yes, we are talking about malls, supermart and co-living spaces. By names, these 3 different businesses may look very unique, but every business segment have a unique lesson on how Indian customers consume, scale and adapt. To discuss on this, we have our guest Mr. Rohit today, who has lived all through his life on all these segments. Mr. Rohit Bakshi, the co-founder of Uniliv, comes with more than 30 years of experience in industry. He has played a pivotal role in senior leadership positions at Stanza, where he has scaled the Stanza Living's business from 1,200 beds to 70,000 beds across 20 cities in just 4 years. Also, his corporate experience also spans around Bharti Retail, Walmart and a key managerial positions at EDM Mall, Delhi. Now coming to his current role, which is the co-founder at Uniliv. Welcome to our show, Mr. Rohit. Mr. Rohit is now a co-founder at Uniliv along with his co-founders Mr. Vishesh and Mr. Shantanu. Alright, so let's start where you are today at Uniliv. Uniliv, I'll want to tell all of you about. Uniliv is a premium accommodation provider to students and working professionals across India. Welcome, sir, to our show. So it's a pleasure to have me here, and Easy Day was a Walmart brand. Okay. In India, and it was acquired by Kishore Biani and Future Group. So it is not Big Bazaar, it is Easy Day. Great. And it's a pleasure to be here and to take you through my journey. I hope your audience love this talk show and podcast. I was very eager and I was very keen to be here to share my life experience in my career, what I did and what takeaways I have, important takeaways. Right. To make any business successful. So I did a very short course with IIM Calcutta, a year of resident program they have. And I have been working from the age of say 20 years. I just graduated and I started working. So the work life has been ongoing process.
Right. Starting, as you said, shopping center, EDM Mall was where I got very close to the retail industry. EDM was a mall which was in East Delhi, in Kaushambi, and I was CEO there. Right. This was the time when the mall industry was coming in India, organized retail जिसको हम कहते हैं. अब ये mom and pop stores से अलग होकर we were planning कि एक organized retail आए, brands आए, and to house all the brands under one roof to satisfy the customers' shopping needs and entertainment. Basically, shopping malls are a form of entertainment only. Absolutely. So since this was in East Delhi, so I developed the brand which would curated brands which would be relevant to my community there. तो मैंने ना एक स्ट्रक्चर दिया था कि ईडीएम मॉल एक ब्रांड था, पीटर इंग्लैंड, आपने सुना हो. Right. So my customer was a Peter England family, husband, wife, both working, maybe staying with their parents and having a kids. तो वो मेरे frame में था. They will be very tight on expenses because they have to meet all their financial needs. Right. So I would not have a Louis Vuitton in EDM mall. Just giving you Absolutely. a picture. I would like to have a Peter England store or a Zodiac, and I would like to keep it very simple because their personality should reflect in the mall, right? The brands they are aspiring to or they want to be part of their journey. So मैंने जो सिलेक्शन ऑफ ब्रांड्स किए थे वो पूरे उस फैमिली, एक पीटर इंग्लैंड फैमिली विच इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली हु हैज़ एस्पिरेशंस टू ग्रो इनटू टू मेक देयर किड्स एजुकेशन हो, ये हो, एंड दे सो ऑल द ब्रांड्स, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, ये उनके अराउंड ही मैंने डेवलप किया. तो एक मॉल को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले 3 मंत्रास हैं. एक तो यार बेचो मत. क्या होता है कि एक डेवलपर अपने को एग्जिट करने के लिए इन जो शॉप्स हैं या जो मॉल की स्क्वायर फुटेज को बेच देता है. तो उसके बाद उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता बिकॉज ही डजंट हैव द कंट्रोल ओवर कि मैं क्या ब्रांड ला सकता हूँ, क्या मिक्स क्रिएट कर सकता हूँ. तो जो भी मॉल्स लीज मॉडल पे चलेंगे वो बेटर परफॉर्म करेंगे. ये डीएलएफ ने भी रियलाइज़ किया. ये हमारे अर्ली जो फॉल आउट होते हैं मॉल जो चले नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुए, वो यही रीज़न से नहीं हुए. बिकॉज आप जस्ट गो टू GIP, ठीक है, आपके सामने एक रेडी एग्जाम्पल है और एक तरफ है DLF, ठीक है, दोनों अक्रॉस द रोड है. हाँ, सामने ही सामने है, सेम कैचमेंट है, बट एक सक्सेसफुल हुआ और एक नहीं हो पाया बिकॉज GIP इज़ अ सोल्ड मॉडल. यूनिटेक का मॉल था, उन्होंने जो शॉप्स थी वहाँ पर ऑन अ रिटर्न ऑफ द रेंटल इनकम दे सोल्ड दैम. उसके बाद क्या होता है कि एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, चाहे उसे आप ग्रीड कहो, चाहे उसको ROI कहो, जो भी. तो वो चाहता है यार कि जो नेक्स्ट टेनेंट आए वो उसको ज़्यादा दे, नॉट रियलाइजिंग दैट यार एक ऑप्टिमम लेवल तक ही वो रेंटल लीज रेंट सक्सेसफुल होगा. रियलाइजेशन तब आती है जब आपके ना ब्रांड्स छोड़ के जाते हैं, फुटफॉल गिरने लगती है और आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन में चली जाती है. जो पहले आप शॉप 300 रुपये पे चढ़ा रहे थे वो आज आप 150 पे पहुंच गए बिकॉज एक तो आपका मॉल में वो मिक्स नहीं रहा टू अट्रैक्ट द कस्टमर. फुटफॉल की डिक्लाइन आई और वो ज़बरदस्त आती. वो एक तरह का दीमक होता है, एक बार वो लग गया and then you will see a slow decline. So that is mall industry के लिए सबसे important है कि यार don't sell, lease and run the mall in revenue share model. You consider your retailer as your partner in business, then the mall will be successful. And similarly is the style the DLF is doing. Right. तो इससे 3 चीज़ें निकल के आती है. एक तो प्रैक्टिकल यूज़ केस है. अगर मैं GIP साल में 5 बार जाता था या anyone else is going,
1 or 2 time when they decided कि आज GIP नहीं जाते, Mall of India जाते, because new outlets New are outlet. there, right? And when I entered Mall of India, after that I'm not going to go back to GIP. GIP. मैं Logix example के लिए we हाँ, are just बिल्कुल, taking all बिल्कुल. these names was Yeah, yeah. we used to go to Select City Yeah, Mall. because I Yeah. don't have anything against that brand. Absolutely, I'm yeah, just trying to give right. an example. Same way. Yeah. या Mall X में मैं जाता था, हाँ. right? Now I started going to Mall Y because it is providing amenities to my children as well as to my wife and my parents. Exactly. And I feel more comfortable. New brands are there. दूसरा जो आपने पहला पॉइंट बोला ना कि हम एक पीटर इंग्लैंड काइंड ऑफ थिंग बना रहे हैं, नॉट अ लुइस आपको वुइटन. मैंने क्यों रखा पीटर इंग्लैंड, Right. ये एक ना इजी है अपने स्टाफ को, अपने मार्केटिंग वाले को समझाने के लिए, बहुत आसान है. क्योंकि वो एक पीटर इंग्लैंड शॉप का एक फैमिली, मैंने सोचा कि यार मैं किसको, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, तो वो एक फैमिली है जिसकी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो बाहर भी खाना चाहता है ड्यूरिंग वीकेंड, Right. वो अपने बच्चों के लिए नए क्लोथ्स भी करना. सो दैट वाज द फ्रेम. And any consumer, be it whatever deep, how deep is their pocket, sir. एग्जैक्टली. Whenever you enter a mall with your family, you have a responsibility कि जब आप आ रहे हो ना, everyone in the family is delighted. तो करेक्ट. अगर मैं example, I am in a Singapore and I entered in that Marina Bay Square, right? yeah. I know how deep is my pocket. So whether I'll restrict myself to enter in with my family. Exactly. But agar at the same time I am entering into Mall of India, I know how deep my pocket is. I'll go, whatever they want to buy, they will buy. Whatever they want to eat, they will eat. Similarly for Seriously. every class. क्लास. So when we are targeting which location पे, कौन सी लोकेशन पे मेरा वो मॉल बन रहा है, उसके आसपास के 10 किलोमीटर में क्या जनता रह रही है, एग्जैक्टली. राइट? शायद आप आज विनाइस मॉल बहुत लोग जाते हैं घूमने नोएडा में, 40 किलोमीटर दूर ड्राइव करके जाते हैं, एक बार चला जाएगा कोई. उसके बाद रिकरिंग बेसिस पे आई गो टू अ मॉल 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को पार्किंग भी देखनी है, ट्रांसपोर्ट भी देखना है, टाइम भी देखना है, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड थर्ड इज डेट कि मैंने बेच दिया तो कंट्रोल नहीं है. मैं आपको बहुत एक रियल एग्जांपल देता हूँ. अभी सेक्टर 50 में सेंट्रल मॉल अभी बना है, जस्ट अपोजिट टू स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल. दैट इज़ इन द सेम मॉडल जो आप बोल रहे हैं. तो उसके एक एंड पे जूडियो है, उसके एक एंड पे वेस्ट साइड है, बीच में पेंटालून है, फिर स्निच है, क्वाबे है, ठीक है, एंड रियल ऑल अदर रिलेटेड ब्रांड्स. फिर बीच का एक सेगमेंट शुरू होता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ गए हो, तो वहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स है, वहाँ पे इंडिया है, वहाँ पे ब्लू स्टोन है, वहाँ पे ज्वेल बॉक्स है, राइट? फिर साइड का एक उसका एक और सेगमेंट है बीच में, वहाँ पे टोनियन गाय है, वहाँ पे गीतांजलि है, वहाँ पे ऑल दीज थिंग्स वेयर यू एंड योर वाइफ और फैमिली कैन गो एंड टेक अ हेयर. करेक्ट. बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे दे हैव अ कॉफ़ी कैफे स्टोर्स लाइक टी बैग एंड कॉफ़ी बीन्स करके. सो दे हैव डिजाइन्ड इन सच अ वे नाउ टिल आई बिलीव विद योर कंसेप्ट टिल नेक्स्ट 10 years दे कैन रन इन दिस सेम मॉडल. और बीच वाला सेक्शन में शायद वो जिम बन रहा है, बीच में कल्ट और एनी टाइम फिटनेस, because it is not sold to me or you, wherein you want to sell to a tenant. If some tenant one is giving you 1 lakh rupees and I am giving you 2 lakh rupees, you would give it to me. Correct. Whether I am opening a dental clinic, right? और ये रिटेल मॉल्स की यही कहानी है. आप अगर आज विदाउट नेमिंग किसी 10 साल पुराने मॉल में जाते हैं तो ये हो गया. बिल्कुल. तो ईडीएम भी एक सोल्ड मॉडल था. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि डेवलपर को एग्जिट चाहिए, जिसने बनाया उसको एग्जिट चाहिए. एंड जैसे ही आप एग्जिट के चक्कर में आते हो तो जो बेसिक एंड उस पर्टिकुलर एसेट का डिक्लाइन में ही जाएगा. Absolutely. क्योंकि क्या रहता है कि मॉल मेंटेनेंस जब तक डेवलपर और उसके प्रमोटर साथ ना जुड़े रहें. आप कहते हैं ना सेलेक्ट सिटी वॉक क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि जो ओरिजिनल उसका ओनर था है मिस्टर अर्जुन शर्मा, जो ही डिडंट सेल दैट प्रॉपर्टी. एक तो वो बेच भी नहीं सकते फॉर 2 reasons, बिकॉज दिल्ली डीडीए की लैंड है आई थिंक वो, और वो उनको लॉन्ग टर्म लीज पे मिली हुई है, और वो शॉपिंग सेंटर के ही कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुआ. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चीफ इज व्हाई मॉल्स आर नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया इज द लिमिटेशन ऑफ ब्रांड्स वी हैव. आप शिप्रा चले जाएं, आपको वही सेट ऑफ ब्रांड्स मिलेंगे. आप ईडीएम आ जाएं, वही सेट ऑफ ब्रांड मिलेंगे. मर्चेंडाइज प्रिडोमिनेंटली सिमिलर है. बाहर ब्रांड्स बहुत हैं. यू नो देयर आर, मतलब शूज़ के अगर आप ले लेंगे तो ब्रांड्स मतलब लाइन लगे हुए हैं, यू नो, एंड द जॉय ऑफ शॉपिंग इज़ टोटली डिफरेंट. वाइल इंडिया मैंने देखा है कि ब्रांड की जो एडिडास, रीबॉक, नाइके ख़त्म, यू नो,
फॉर्मल्स में आ जाओ तो आपको हश पपीज या बाटा, उसके बियॉन्ड नहीं है। एग्री। मैं ये सोचता हूँ कि यार जैसे जैसे इंडिया के बढ़ रहे हैं, वी शुड ऑल्सो हैव आवर ओन ब्रांड्स with a with a thing that it brings more variety. एंड नाउ कमिंग, अभी कॉमेट आया कॉमेट है, है, नीमन्स इज कमिंग, नीमन्स आए, तो मतलब ये अब शुरू हुआ है। Right. मैं जब मॉल में इंडस्ट्री में था 2004-5 में, तो ये Absolutely. सारे मतलब मैं शिप्रा जाओ या सेलेक्ट सिटी वॉक जाओ, ब्रांड वही थे, खाली उनके मर्चेंडाइज की जो प्लेसमेंट थी वो अलग थी, बिकॉज वो एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर को डील कर रहे थे। सो वो अपनी पोजीशनिंग, तो मॉल भी एक ब्रांड है, उसकी भी एक पोजीशनिंग है मार्केट में। हाउ रेलेवेंट आई रिमेन फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट, एब्सोल्युटली, बिकॉज जो कैचमेंट आपके आसपास है वो भी इवॉल्व हो रहा है, राइट? वहाँ पे भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, रेलेवेंस उसका इम्पोर्टेंट है। And rather than a horizontal expansion, now in NCR it's a Vertical. vertical expansion. Yes. So within a 1 kilometer of area, you will have 5 lakh cars, 5 lakh families. Rather than a horizontal like Delhi Exactly. and that area, right? Yeah. So thank you for this insight, sir. Yeah, and Welcome. मैं तो सोचता हूँ यार that India should promote tourism a lot. आप देखिए दुबई में अगर आप गए हैं, and any time you pick up a Emirates ticket, you will get a stopover in Dubai. So the influx of the tourism is so much in Dubai, and that it becomes a very vibrant, right? Right. India should also think of developing tourism to attract more customers, to get more footfall in India. Right. तो ये बहुत ज़रूरी है to develop an infrastructure around shopping center. Great on malls. But I loved running East Delhi Mall for 5 years. Our audience from East Delhi now would be, if they are listening, they would be very and most of them happy, would and they be will know much knowing- deeper. And especially people who are now at 38 or 40 year of old, because they can relate it to their early 20s. Yeah. So let's shift from malls to now co-living, which is our hot topic today. Yeah. So sir, while you were at Stanza, what convinced you particularly regarding co-living business models and co-living space, which convinced you that it's not a passing trend but it's creating a long-term business opportunity in India? To be honest with you, in my journey of life, I think God sends you opportunities. You have to be picking it at the right time and the time. जिसको कहते हैं ना, सही समय पे सही चीज़ कर लेना बेटर है, ठीक है? तो ये ना, जब मैं वापस जाता हूँ, जब मैं एक्चुअली गारमेंट एक्सपोर्ट में था, एंड देन शिफ्टेड माई सेल्फ इनटू मॉल मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने देखा कि गारमेंट एक्सपोर्ट अब इंडिया से ना जा रहा है, इट हैड गॉन इनटू बांग्लादेश एंड अदर कंट्री. सो व्हाट वाज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वाज द रिटेल, वेयर यू वर फ्रंट एंडिंग. मैकडोनल्ड्स आया, KFC, ये सारी चीज़ें आ रही थी, ब्रांड्स वर बिल्डिंग. सिमिलरली इज़ द केस दैट आई फाउंड दैट सुपरमार्केट की जर्नी मैंने कर ली थी. मैं traveled across India, knew the inside out of a supermarket mix and all. This opportunity came out of the blue only because I was in Mumbai. I wanted to come back to Delhi to my family. तो जो founders हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू अ कॉमन लिंक, एंड दे सेड कि यार वी आर रनिंग हॉस्टल्स. तो कहते हैं लगे यार वो यू मस्ट बी नोइंग PG. तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया यार ये द काइंड ऑफ PG क्या होता है. एंड तो ही सेड कि यार ये ना बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड में जा रहा है. मैंने कहा यार ये क्या हो है यार, PG का बिजनेस, फ्रॉम रिटेल टू कमिंग इनटू अ PG business. So what I did was that I came down to Delhi and I met them, and I went to North Campus. And there I saw that it was a very buzzing industry. People, as a second source of income, were rebuilding their property, transforming them into PGs. वहाँ कमरे और उनको वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देते थे. उनकी जो सर्विस सेट थी वो बहुत वीक थी, because they were not able to meet it in a very professional manner. मतलब
वो अभी भी एक मॉम एंड पॉप स्टोर जैसे होता है, एक बाई को बुला लिया, आपने अपना कमरे सफा करा लिए, एंड यू नो रनिंग इट लाइक यू मस्ट हैव आल्सो लिव्ड, आई आल्सो लिव्ड इन। सो उसको वो लोग एक फॉर्मेटिव की तरफ ले जाना चाह रहे थे, वेयर दे वांटेड टू पुट अ सिस्टम प्रोसेसेस कि यार एक प्रोफेशनल हाउसकीपिंग कंपनी होगी जो प्रॉपरली इसको डीप क्लीन करेगी, एंड यू नो टू ब्रिंग the safety and hygiene and also the food quality services and all. तो मैंने कहा एक why not we should try, मैंने कहा यार let's take this challenge. बहुतों ने मुझे मना किया कि यार now you're in the fag end of your retail career, why do you want to you know get into a startup journey which is really tough, because इसमें the scale of growth is in a limited period, you want to achieve maximum growth, and इसमें क्या रहता है कि VC fund जैसे ही enter करता है उसकी अपनी pressure of scale and scale fast and beyond industry standards. Otherwise, why would they 30% return चल रही है, और वो आपके they hammer you on that. Absolutely. So predominantly मैंने कहा ठीक है, I will try it, but I had no clue यार कि ये इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स कैसे वर्कआउट होता है, how do you डू अ साइंस बिहाइंड इट, मतलब कि कैसे आप एक सिलेक्शन करते हैं एक क्लस्टर की। तो ये सारा कुछ था नहीं, खाली एक JLL की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, दैट्स इट, देयर वाज नथिंग कॉन्क्रीट अबाउट इट। आल्सो प्लंज्ड माई सेल्फ इनटू इट, एंड आई, आपको पता है VC फंड की ग्रोथ स्ट्रैटेजी, सो आई जॉइंड देम, आई क्रिएटेड द एंटायर प्रोसेस कि कैसे एक एक्विजिशन होनी चाहिए फॉर अ PG, मतलब क्या सोच होनी चाहिए हमारी इंफ्रा के तरफ से। तो इन 4 months I did 10,000 beds. That was the time when Stanza got their first funding of 100 crores from Sequoia Capital, and Sequoia Capital was the journey started. So predominantly क्या था कि parents and the kids were coming from tier 2 city to North Campus and to the cities कि यार बच्चों को वहाँ डालेंगे, they will do their graduation and then you know that's the journey. And in that they wanted some person, whether it is a company, they were looking for a company, professional company, because it is easier for them to approach. Absolutely. Also there is somebody organized marketplace, it's organized. तो उन्होंने कहा यार कि yes, then Stanza was one of the choice for them. और ये एक इंडस्ट्री ऑलरेडी UK में USA में चल रही थी, वहाँ पे चाइनीज़ और इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे थे जिसको एकोमोडेशन सर्विस चाहिए थी, तो उस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये वेस्ट से अडॉप्ट करके इंडिया में लाए। एंड वी डिड 22 सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, क्लस्टर्स मार्कआउट किए, बिल्डिंगें एक्वायर की, एंड वी रीच्ड 70,000 बेड्स। आइडिया वाज दैट कोविड अगर नहीं आता, आई थिंक वी वुड हैव गॉन फॉर एन IPO फॉर स्टैंजा, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती। अभी 2 कोविड के इन्फ्लक्स के बाद बहुत इश्यूज आते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मोर रियल एस्टेट रेंटल kind of a business. University shut down. Right. And now at Unilive, how you are taking this again, like from that Stanza's experience? And see, to be honest with you, I am seeing a very big behavioral change coming in our society. Right. How do I study this is by looking at my daughter. Now, husband and wife are both career oriented. Right. They want to look at their career graphs. They are not going to, मतलब the पहले क्या था कि there is a mom who will take care of the घर के you know चीज़ों को, and father is the guy who would earn and support the family. Right. अब ये क्या हुआ है कि the generation that is coming, the Gen Z कह लो और उसके beyond, they don't want to get hooked to this kind of a menial jobs. They want somebody to take that away from them. Like laundry हो, घर की सफाई हो, cooking हो, they don't want to do that. Cooking will become like a celebration कि आज मेरा मूड ना यार कुकिंग करने का है. Absolutely. Fully agree with this point. तो आज मैंने एक YouTube में एक चैनल में मैक्रोनी बनाना दिखाया, तो मैं आज वो बनाऊंगी. लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कल सुबह 7 बजे उठ के तो नाश्ता और
लंच मेरा पैक करे, वो नहीं करेगी। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इनको ना एक अब स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए जो एक कंपनी मैनेज कर ले, सिक्योर कर ले उन्हें, लॉन्ड्री सर्विस दे दे, खाना दे दे। Absolutely. They will love to stay there. They are on the apps जो कि they can order स्विगी जोमेटो। अगर आपको मेरा अला काटे या मैं अला काटे कर रहा हूँ या बूफे मेरा समझ नहीं आ रहा, then they can order from outside. Otherwise, this is the community which is going to be there. Right. This case of creating 2 bedroom 3 bedroom का जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। एंड आप अगर हांगकांग ट्रैवल करें, सिंगापुर में यू कैन सी दिस, अभी भी आप देख सकते या डेवलपर वहाँ किचन ही नहीं बनाते। हांगकांग में घरों में आपको पता है किचन नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एक पैंट्री टाइप चीज है। नो किचन, नो टैप्स, देयर इज अ ड्रिंकिंग वाटर टैप इनसाइड अ बाथरूम, बिकॉज़ दे से कि वी आर गिविंग यू द प्योर वाटर, इट्स सेम राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ना बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। एंड उसकी वजह से देर आर 2 इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू डू वेल। वन इज दिस को लिविंग एंड द अदर इज ओल्ड होम्स। ये 2 इंडस्ट्री अभी बहुत ज़बरदस्त पकड़ने वाला है स्पीड। एंड द बेटर इज दैट द डेवलपर शुड रियलाइज इट, क्योंकि दे विल बी सिटिंग विथ लॉट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। आप जाके कहीं भी देखें अनसोल्ड इन्वेंट्रीज, टावर्स पड़े हुए हैं, because there is the demand has started declining towards this kind of in 2019 2020 I was reading somewhere, maybe housing.com or maybe Stanza, I don't know, they have started taking complete towers from the builders directly on leased basis, right? Correct. And now that the students or the working professionals who stays there, they have that amenities called clubs, swimming pools, everything. Exactly. Now जैसे कॉर्पोरेट्स में हम करते हैं, यू हैव अ फंक्शनल हेड, दैट फंक्शनल हेड रोल इज टू लुक एट दैट फंक्शन ओनली। वो सब कुछ नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स जो आपने अभी बोला, सेम चीज़ हो रही है। मैं पढ़ने आया हूँ या मैं नौकरी करने आया हूँ, मेरा मैक्सिमम काम उसमें जाएगा। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को अपने ऊपर स्पेंड करूँगा अपने लिए, ठीक है। और अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ने आया हूँ, उस बचे हुए टाइम को शायद मैं कुछ अपने स्किल्स अपस्किल करूँगा, बाकी चीज़ करूँगा, और आई विल सिट एट अ लेजर, आई विल स्क्रॉल इंस्टाग्राम एंड बट मैं घर आके कपड़े धोऊं। व्हाई वुड यू से दैट यार आज मेरी वॉशिंग वूमन नहीं आई, मेरे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, राइट। यू विल नॉट लाइक टू हैव दैट ना। और यही है, बिकॉज माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब टाइम कम है एंड यू वांट टू डू मोर थिंग्स, यू वांट टू ट्रैवल, you want to meet your friends. If you have these daily chores as a stress in your life, you will not be able to focus on your work also. Right. So idea was कि मैं एक इंडस्ट्री में जाऊँ जो relevant रहे next 10 years, और ये मुझे लग रहा है मेरी लाइफ जर्नी में this is one of that industry where I want to focus and I'm very passionate about it, because you are touching many lives at one time. Absolutely. Today I'm running 3,500 beds across India. And I am very passionate from the perspective that I want to be in. See, जब आप स्केल करते हो ना किसी बिजनेस को, तो आप अपने कस्टमर से दूर होते चले जाते हो। Then you have layers, you have vice presidents or CEO of a company and all. But the more you keep yourself focused on that particular customer कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है उस कस्टमर के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, then only you will succeed. And listening to your customer day and day out, you should be passionate. अगर आपको ये लगे यार ये तो मेरे लिए बोझा हो रहा है and all, then तो you are in a wrong industry. इसी पे सर एक पॉइंट है, like India is having 50 million, more than 50 million students or much more than that, a working professional who migrates to different cities every year, maybe for a new job, maybe for a higher academics and all. And parents now, parents of a 20-year-old or a 19-year-old, right, they have concerns. They have concerns about safety, about the quality of foods, because if traveling even in the north, but someone is traveling from Gujarat to Delhi, someone is traveling from Chennai to Delhi, Bangalore to Delhi, right? So the kind of a food, the security, the locality, and then the amenities. As a parents, I have done my best to keep my children, right? You are also doing your best to keep your children the best possible way. अब हम वो किसी और को वो जिम्मेदारी दे रहे हैं। Correct. और एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं भी 20 साल 21 साल 22 साल से घर में रह रहा हूँ,
तो Correct. घर से बाहर जा रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन सेम है, एंड व्हेन इट इज़ ऑन अ मॉनेटरी बेसिस, मैं पैसे दे रहा हूँ उस चीज़ के, तो नाउ माई एक्सपेक्टेशन इंक्रीजेस. तो इसमें एक यू मेंशन वन थिंग वेयर इन द पेरेंट्स एंड दिस थिंग हैज चेंज्ड, बट देयर इज विल बी अ लार्ज अनटैप्ड एरिया स्टिल जहाँ पे वो चेंज अभी हुआ नहीं है. हाउ वी कैन convince and convert those parents and student mindset that this is not just a room with a Wi-Fi and housekeeping, but this is just an extended family. Community का मतलब क्या है? आपके जैसे ही, आपकी एज के ही, आपके स्पेस में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, so that you can grow much better. Correct. Right? और वहाँ पे फिर वो challenges भी हैं, challenges पे हम आते हैं एक अलग से segment. आप believe करोगे, there was a family from Bareilly. See, these are life instances which I'm sharing with you because I was very closely associated even while during the season, जिसको Right. हम season time कहते हैं. July, August for Admissions students, right. आते हैं and there is a whole influx of parents and children coming from different part of the. So there was a family from Bareilly, I clearly remember, and they have their daughter and they got admission in JMC. तो वो हमारे एक सत्य निकेतन के hostel में they came to. Right. The kind of conversation they were having, the mother and the child were having, was this कि you want to go to London, but पहले तो अकेला रहना तो सीख ले. You know, तो अपने आप को मैनेज तो कर. अभी मैं तो बरेली में हूँ, तब तो I can still, but if I send you first time to London, मैं भी दूर, आप एक different environment में, आप मतलब society, everything. First, get accustomed of managing yourself alone, because most of the kids are micromanaged by their parents. यार, Right. आप सोचो, you know, कि जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं, the parents are like hawk-eyed on them. तो decision making नहीं समझ आती till later stage, preferences नहीं समझ आते, even दोस्त नहीं बनते because you are so much in your own environment. तो जो वो now she came into a hostel जहाँ पे 200 girls are going to stay from different background, so she has to adjust with her living partner. Right. कौन साथ में रहेगा, You don't ठीक have है. control. खाना मेरा obviously मैं जितना भी चाहूँ घर का खाना, but it's a commercial kitchen, यार. Right. It has to be run in a commercial way now. So that cultivation of that entire process is an education in itself. Right. This brings man management, financial management, everything in a child who has come from that tier 2 city and growing with their thing. She has to manage her entire interaction with the kids living in the hostel, college, professor, everybody. So उसका एक world के साथ interaction शुरू होता है. Right. So ये एक बहुत बड़ी transformation है. And I suggest that children should live in a hostel for few years to develop their own identity Right. and personality. And I think on top of it, there should be a kind of a town halls for parents as well. Parents of 11th and 12th class students, they should get ready from 1 year, 2 year advance, right? Yeah. Maybe organizations like yours जी. just conduct a webinar for all the Indian parents whose children are in 9th, 10th, 11th, 12th. यार ये सच आने वाला है. आने वाला है and राइट. you know, मैं अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, बाहर भी देख रहे हैं, आपने बहुत सारे केसेस बताए. जब पहली बार मैं अपने बच्चे को भी पहली बार कहीं अपने बिना कहीं छोड़ दूंगा, तो एज अ वेरी कंसर्न्ड, वेरी कंट्रोल्ड पेरेंट्स बहुत सारे थॉट्स अननेसेसरी भी आएंगे कि आप खाना, assume अब करने खाना लगते तो हैं आप ना. भी वही खा रहे हो जो आपके बच्चे खा रहे हैं, जो आपकी फैसिलिटी में जो आपका हाउसकीपिंग का आदमी खाता है, जो आप फाउंडर्स खा रहे हैं, जो आपके स्टाफ खाता है, वही वही कर रहा है. स्टूडेंट्स खाते हैं, राइट. एंड इट मे बी थ्रू अ वेंडर्स एंड ऑल. फैसिलिटीज़ वही हैं और मे बी घर से अच्छे रूम्स हैं, just in terms of it, just like that psychology or that mindset is not adapting to it. Correct. So उसके लिए maybe there can be a town hall kind of a thing for parents and for then students as well. और schools में भी ये चीज़ें 11th 12th में मेरे ख्याल से as a curricular डाल देना चाहिए how to how to manage. go out of home, right? Yeah. सर बिजनेस पे आते हैं एक बार, मेरा फेवरेट एरिया बीइंग. सर को-लिविंग के बारे में अगर कोई आज बात करे तो दे नो, ठीक है, एक रूम है, एक वाईफाई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और उसमें आपको देना है, ये रेंट चल रहा है, एवरेज रेंट 15,000, 17,000, 27,000 बेस्ड ऑन द लोकेशन.
और बिजनेस अच्छा है, 100 कमरे हैं, 27,000 रुपये आ रहा है, तो एवरीवन कैलकुलेट ओके, 27 लाख रुपए इनका महीने का आ रहा, मस्त बिजनेस है, राइट? बट the actual business metrics doesn't look like same. 100% occupancy is a dream of every founder, but maybe on an average होटल में शायद 60-70% रहता है. आपके बिजनेस में I will know from you. देखो अभी तो मैं 3,000 बेड पे हूँ, तो I make sure that all my buildings are 100% sold out. But on average, if I take, it will be about 90-95%. Right. This business will only make money if you are above 70% occupancy. Right. Minimum. This business will only make कि आप अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कितना कम रख सकते हैं. सपोज मैं आपको बताता हूँ ये इंडस्ट्री क्यों सक्सेस होती है. एक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट अकोमोडेशन, प्रोफेशनल लिविंग एंड को लिविंग. ये तीन चीज़ें एक अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं. स्टूडेंट अकोमोडेशन की सबसे ज़्यादा स्टिकीनेस रहती है. आपने फर्स्ट ईयर को एक कस्टमर एक्वायर किया, वो आपके साथ 4 साल रहेगा. आप बिलीव करेंगे, मैं सारे एग्जैक्ट इंटरव्यूज़ अपने हॉस्टल में लेता हूँ, सारे स्टूडेंट जो रह के जा रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज दे गिव यू एन ऑनेस्ट फीडबैक कि आपकी ये गलती है, आप इसको इम्प्रूव करें. हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी बट आपने ये नहीं किया. ठीक है, तो मैं एक एग्जैक्ट इंटरव्यू से मुझे, अगर मैं 15-20 भी इंटरव्यू ले लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली अपना रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है. Believe you me, I was also surprised that kids जो मैंने जब 2022 में स्टार्ट किया था ये बिजनेस, उनकी ग्रेजुएशन अब हुई है 25 में जाकर. 3 साल बहुत बच्चे मेरे साथ रह के गए, बहुत, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे. मेरे को भी शौक था कि यार ये 3 साल हमारे साथ, इन स्पाइट ऑफ आवर शॉर्ट कमिंग्स. ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही, मतलब आई वॉज हिटिंग माई मेट्रिक्स एवरी डे एवरी टाइम 100% ला रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. कभी एसी फूक गया, कभी खाना खराब, कभी लॉन्ड्री में कपड़े फट गए, मतलब एवरीथिंग आई एम डीलिंग विद एवरी डे. बट दोज किड्स स्टेड विथ मी फॉर 3 years. You know why? Because there was an intent of improving my service. Because they saw कि यार ये ठीक है, घर में भी हो जाता है, मॉम कभी नमक जल गया या कुछ हो गया, बट जिस भी कंपनी की इंटेंट ये रहेगी कि यार मैंने अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है, तो उसके साथ कस्टमर खड़ा रहेगा. बिल्कुल एग्री. नंबर 1. तो आप सोचो कि एक कस्टमर को आपने एक्वायर किया, उसकी लाइफ जर्नी शुरू हुई आपके साथ. अब उसने पूरे 4 साल एजुकेशन किए आपके साथ रहा, अब वो जा रहा है बैंगलोर. आपने वहाँ पे प्रोफेशनल लिविंग की हुई है, क्योंकि बैंगलोर इज़ फुल ऑफ IT एंड इंडस्ट्री, ये सारे. या हैदराबाद जा रहा है, या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी ही जाएगा. वो ऐसा तो है नहीं कि वो वापस बरेली चला जाएगा. मोस्ट, मतलब अगर 100 ने आपके साथ रहे हैं तो वो ऐसे ही सिटीज़ में जाएंगे. आप वहाँ पे उनके लिए एक प्रोफेशनल लिविंग करो ना. राइट. वो उन्होंने आपका सर्विस सेट देखा हुआ है, वो आपके ब्रांड के साथ स्टक है, तो उनको ये तो पता है यार कि ये चीज़ें तो मुझे यूनिलिव में मिल जाएगी. राइट. तो वो वहाँ पे जाए. तो आप उसकी जर्नी वहाँ तक आपने कवर कर ली कि वो वर्किंग में भी है. तो आप देखिए, आपने एक लाइफ जर्नी ऑफ अ कस्टमर, उसको कितने लंबे समय तक अपने साथ. So if I'll say in simple words, LTV would be minimum 4 to 3 years, 3 to 4 years, and then on a higher and a best scenario, it can be for 7-8 years as well. Because whenever I see that the girl has done graduation, she asks me कि सर आर यू इन हैदराबाद, मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है, या मेरे को सर वहाँ इंटर्नशिप मिली है, कैन यू सजेस्ट मी अ ब्रांड, अगर आप हो तो बता दो. तो मैंने अब बैंगलोर में स्टार्ट किया है, अब मैं हैदराबाद भी करूँगा. बिकॉज आप एक लाइफ जर्नी जो है वो, तो यही एक प्रॉफिट आप कमा रहे हो उससे. आपका जो बिजनेस साइकिल है यही चल रहा है. क्योंकि अपफ्रंट आई इन्वेस्ट कैक, है ना, कैक इज हैवी. आप सोचो एक लड़की ने 30,000 रुपये, एक एग्जाम्पल, आपके साथ 4 साल दिए. 5 से 7% का एस्केलेशन वो हर साल देगी आपको, बिकॉज इन्फ्लेशन किक्स इन. तो यू सी हाउ इट हैज़ ग्रोन. सो बिजनेस यील्ड, अगर आप टॉप लाइन देखोगे, स्टूडेंट एकोमोडेशन या हाउसिंग जो हम कह रहे हैं बात, उसकी टॉप लाइन इज़ फैंटास्टिक. टर्नओवर आप देखो ना, राइट. 3,000 मल्टीप्लाइड बाय एन एवरेज ऑफ, आप 20,000 रुपये भी लो, कुछ चलो 30 में बेड बिका, या किसी
सेंटर में मैं 15 में बेच रहा हूँ, बट एवरेज आउट अगर आप देखो 18 से 20 हज़ार रुपये महीना। इसमें सबसे बड़ा कॉस्ट होता है रेंटल, एब्सोल्यूट, जो 30 से 35% आपको मेंटेन करना है कि यार इसके बियॉन्ड मैं जाऊंगा तो मैं वाइबल नहीं रहूँगा। तो मेरी जो एक्विजिशन ऑफ अ बिल्डिंग है, ये जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लीज, राइट, वो 30 से 35%, और मतलब मैक्सिमम की लोकेशन में सुपर, मतलब ऐसी बिल्डिंग दोबारा आएगी और सीधा बिल्डिंग में घुस गए, तो वो 40%। आपकी जीके वाली प्रॉपर्टी शायद ऐसे ही है, राइट, हाँ मेट्रो जी, से निकले हाँ और जी, पैदल बिल्कुल, पैदल बिल्कुल। चले। तो ये तो एक्विजिशन इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो यार, कोई भी बच्चा आएगा उसको मेट्रो चाहिए ही है। Right. पहले दिन आके तो वो गाड़ी या 2 व्हीलर खरीदेगा नहीं। Right. तो ईज़ ऑफ कम्यूटिंग, तो साकेत वाली बिल्डिंग इज़ 100 मीटर, मेरी SDA वाली 100 मीटर फ्रॉम मेट्रो स्टेशन, ईस्ट ऑफ कैलाश वाली 100 मीटर फ्रॉम नेहरू इनक्लेव वाली 100 मीटर। तो Right. मतलब आप मेट्रो स्टेशन के आसपास मतलब हाउ आर यू वेल डिफाइनिंग द एंटायर स्ट्रैटेजी ऑफ एक्विजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके बिजनेस को अगर मैं बहुत ब्रेक डाउन करूँ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, राइट, अगर मेरा ऑन एन एवरेज 20,000 रुपये मैं एक स्टूडेंट से लूँ, लाइफ टाइम दे कैन पे मी अराउंड मिनिमम ऑफ 15 lakh rupees to 20 lakh. So to get a 20 lakh worth of a LTV, lifetime value from a customer, how much CAC I'm investing on day one, maybe 5,000 10,000 रुपये में भी अगर एक लीड आते मैक्सिमम हैं 5,000 है। 5,000 आपके बिजनेस में देखिए 5,000, आपने गूगल में डाला, आपने Google एड Ads, चलाए अपने, right. वहाँ से आपको लीड जनरेट हुई, वो आपके पास आ गया। एक बार आपके पास आ गया, इंश्योर दैट द सर्विस दैट यू आर प्रॉमिस्ड हिम यू डिलीवर इट, right. ही विल And नॉट। if they are not deciding to stay at your property, you have the reasons कि maybe they found another property at a lesser price, Yeah. or maybe they shifted their plan. वेरी सिंपल होता है, क्या रहता है कि पेरेंट्स का एक बजट होता है, वो बच्चों को पता चल जाता है कि यार पेरेंट्स मेरे ना 20,000 रुपये खर्चने में अब कंफर्टेबल हो गए हैं। Right. अब हम 3-4 लड़कियां मिलते हैं और एक अपार्टमेंट ले लेंगे। Right. दिस इज द नेचुरल Absolute. ट्रांजिशन। मैं इसी पे आ रहा था। तो वो क्या कहेंगे, यार अपनी इंडिपेंडेंस होगी, हम अपने क्या कहते हैं कि मालिक होंगे चीज़ों Right, के, right. नॉट रियलाइजिंग कि वो जो जर्नी है ना वो थोड़ी टफ होती है। Tough होती अब देखिए आपने एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, 6 लड़कियों ने डिसाइड किया कि यार एक अपार्टमेंट, एक भी लड़की उसमें से एग्जिट कर जाती है, उस बेड का जो रेंट है बाकियों के ऊपर वो आएगा, ठीक है। देन दे वांट टू फाइंड अ सम पर्सन हु इज गोइंग टू जेल विद एवरीबॉडी। आप तो खैर Right. जेल कर रहे हो, Right. बट सपोज सानिया आ गई, अब सानिया के आपके साथ नहीं इक्वेशन बैठ रहा, Absolutely. तो रोज तो ये इशू उनको हमारे साथ नहीं आते हैं। तो करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं, करते हैं, बट इवेंचुअली मैं समझ सकता हूँ कि दे कम बैक आफ्टर ट्राइंग। तो जो आप कस्टमर सक्सेस पे हम बात कर रहे थे ना, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमारा ज़ूम इन में। व्हेन वी स्टार्टेड, हमने एक्सेल पे कुछ डैशबोर्ड्स बनाए और अपने कुछ अर्ली कस्टमर्स को दिखाए कि हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, राइट। करेक्ट। As a starting Starting person, point. right, I जी. was the one who was building it on Excel, who was discussing with the clients through our personal network, because B2B SaaS, its entry very tough. It's like IIT IM. हाँ, Entry is tough, exactly. then once you enter, your LTV is 3 to 4 years, right? But you need to promise or service them, right? Excel पे दिखाते थे, अब जो दिखा दिया, योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो आपका प्लेटफॉर्म बना वो एज इट इज़ बने, और उतना तो बने फिर एडिशन आप कुछ भी बनाते रहे। जी। बट क्या होता है, सेल्स कोई और करता है आपके हर बिजनेस में। सेल्स पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, ऑपरेशन इज अ डिफरेंट पर्सन, एंड देन कस्टमर सक्सेस और सपोर्ट इज अ डिफरेंट फंक्शन एवरीवेयर, वट एवर इंडस्ट्री वी पिक। हमने क्या करा था, शुरू के 2-3 अकाउंट से वी हैव अ लर्निंग, देन वी हैव कमिटेड कि 24 आवर्स ऑन बोर्डिंग वी विल डू। हमने करी भी, बट उसमें चैलेंजेस तो हैं ही। एज अ सेल्स बिल्कुल। से समथिंग, बट दैट शुड बी, आप उसको करके दिखाना पड़ता है। तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, हमने भी गूगल पे ही पढ़ा, हमें भी नहीं आता था। हमने सारे डेमोज रिकॉर्ड होते हैं, कई बार कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं लेट अस रिकॉर्ड अ डेमो, दिस वी नीड इट इंटरनली। जी। वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल डेमो, जी। और वो रिकॉर्डिंग डेमो, वंस अ कस्टमर एग्रीमेंट इज साइंड, दैट इज forwarded to the onboarding team, the customer support team and a customer success team, and this is a metric कि जो इस डेमो में बोला गया है ना, whether it is available or not through a direct solution or alternate solution, ये तो देना ही देना है, this is a must have। इसके ऊपर आप जो दे देंगे that is customer delightness, but customer satisfaction is जो मैंने बोल दिया ना सेल्स के टाइम। अगर मैंने बोल दिया कि
लाइटर नोट पे कि प्लेटफॉर्म में तितली भी उड़ जाती है तो आपको उड़ा के दिखानी पड़ेगी, राइट। तो कस्टमर सक्सेस आएगा तो चर्न आपका चर्न नहीं है, आएगा। राइट। तो रिटेंशन लंबा है Retention। एंड वहां पे बिजनेस पैसा बना रहा है तीसरे साल, दूसरे साल, एवरी बिजनेस। क्योंकि जो मैं बात करके समझ पा रहा हूँ बिजनेस, पहले साल बहुत सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक नई प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं, 6 महीने का लॉक इन देते हैं, फिर आप पूरा इंफ्रा उसका बदल देते हो, आप स्टूडेंट्स को कुछ फोटोज दिखा रहे हो पीपीटी से कि हम Absolutely। ऐसा क्लब बना देंगे, ऐसा एमिनिटी होगा, ऐसी पेंट्री होगी, आज ये गलत दिख आपका रही है, रूम का लुक एंड फील ऐसा होगा। आज मैं आया देखने रूम तो सफेद दीवार है, सीलन आई हुई है, बट आपने मुझे आईपैड पे एक रूम दिखाया कि दिस इज गोइंग टू बी इन ग्रीन ऑलिव कलर्स, Absolutely। राइट। अब वो एक इन्वेस्टमेंट है, दैट विल गेट रिटर्न जब मेरे 2 साल 3 साल 4 साल मैं रुकूं वहाँ पे। जो आपने फैक्ट्स बताया, दिस इज लर्निंग। सो ऑपरेशनली और एस्केलेशन वाइज चलता रहता होगा आपके बिजनेस में सर, मतलब डे इन डे आउट? बहुत ज़्यादा, Right। मतलब ये इतनी Satisfying a बिजनेस customer। है कि आप 100% तो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, राइट। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप उसको बेसिक चीज़ डिलीवर कर दो ना तो वो रहेगा। जो मेरे लिए मस्ट है, जैसे एक तो कुछ ऐसा भी रहता है कि कुछ बच्चे ना दूसरे पीजीज में रहकर आए तो उनको पता है कि हकीकत बाहर क्या है, ठीक है, और वो हमें देखते हैं कि यार चलो इसमें ये तो मुझे सेफ सिक्योरिटी और हाइजीन तो है ही ना इनका, जो वहाँ पे नहीं था। तो काफ़ी बात क्या होता था कि जो नए बच्चे आते थे तो हम उनके साथ टाउन हॉल करते ही हैं, राइट। और जब थोड़ा सीज़न सेटल होता है तो हम हर हाउस में जाकर टाउन हॉल करते हैं, अंडरस्टैंड। तो उसमें काफ़ी फीडबैक्स आते हैं, कुछ बचपना भी होता है उनमें कि Right। मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए, बट इवेंचुअली दे कम अराउंड इट व्हेन वी ट्राई एंड एक्सप्लेन देम कि यार ये एक कम्युनिटी लिविंग है, इट इज़ नॉट कि आप घर में रह रहे हो या ये कि होटल नहीं है, राइट। इट इज़ अ हॉस्टल। सो हॉस्टल के कुछ नुआंसेस पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, तो दे रियलाइज इट एंड देन दे इसी पे कम सर, अराउंड इट। जब मैं आ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई हैव अ पैकेज 17,000 27,000, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कुछ शायद फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, बट मेरे को वो चाहिए एज एड ऑन। हमारे इंडस्ट्री में पूरा सर्विस सेट, पूरा स्टूडेंट Bundled। अकोमोडेशन में बंडल्ड है, क्योंकि मार्जिन्स आपके ना हर सर्विस सेट में ही एडेड है, राइट। सबसे ज़्यादा फूड में। फूड में, राइट। तो अगर आप वो फूड का कंपोनेंट निकाल दोगे तो बेसिकली देन योर मार्जिन्स आर वेरी टाइट, ठीक है। देन तो आप खाली एक बेड ही बेच रहे हो, आप बेड को बेच रहे हो तो उसकी जो बेचने की भी जो वो है स्ट्रेंथ और द पैरामीटर, वो एक लिमिट में आके रुक जाएगी, राइट। तो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था कि फूड एज अ कंपोनेंट हम निकाल देते हैं, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डेलिकेट सर्विस सेट विच गेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक वेरी फास्ट, यू नो। किसी को मसालेदार खाना अच्छा लग रहा है, किसी को ब्लैंड अच्छा लगता है, किसी को तो उसमें क्या रहता था कि काफ़ी लोग एक फूड सर्विस सेट को निकाल के बेड को बेचने लग जाते हैं। मार्जिन टाइट इसलिए भी होने के कारण ऑपरेशंस हिट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू bundle your margins across all the services will help you to sustain yourself in a long term. Right. So agar anyone, just on this segment on the last part, right, anyone aspiring founder today wants to enter into co-living spaces after seeing all the news articles of co-working spaces over the last 2-3 years. हाँ, अभी तो IPO में बहुत गए ना, स्मार्ट वर्क्स Now, भी। yeah. So now इन सब न्यूज़ को सुनने के बाद अगर एज एस्पायरिंग फाउंडर मेरे को को लिविंग स्पेस में आना है तो कौन सी 3 या 4 चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए, या मैं उसका आईना देख के ही उतरूँ, राइट, व्हाट आई शुड नो ऑन डे वन? तो मेरे हिसाब में पहले आपको एक अपना क्लस्टर सेलेक्ट करना चाहिए और उस क्लस्टर को आपको डीप डाइव करना चाहिए। काफ़ी पीजी वाले आप अगर गूगल भी करेंगे, they are very cluster centric because they are in that cluster and they operated in that cluster only, और वो they don't want to go into a different clusters and scale it into a so सबसे पहले तो आप जब आप अगर एंट्री करना चाहते हैं इस बिज़नेस में तो आपको शुरू से ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक ऑप्स हैवी बिजनेस है, ठीक है।
दूसरा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि सीपेज ना हो, बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, सनलाइट आ रही हो, बिकॉज दोज आर द कंपोनेंट्स which any parents would see when they buy a bed from you, or or block a bed with you. They want to know कि यार my daughter or my child should be able to experience a ventilated room, a sunlight room. Right. It should have a proper washing, bathing area. तो जब आप कुछ भी इंफ्रा सिलेक्शन करने जाएं, एक लिस्ट बना लें Right. कि ये मैं कॉलेज से कितनी दूर हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा बच्चा, और मैं चाहता हूँ कि आप उस क्लस्टर में या उस बिल्डिंग में 2-3 दिन खुद रहें, ताकि आपको पता चले कि पानी कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे है, बैकअप मैं कैसे दूँ. तो एक पूरी आपको ना एक डायनेमिक्स लेके चलना पड़ेगा अराउंड योर कस्टमर, Absolutely. एंड क्यूरेट अ प्रोडक्ट कि हाँ ये वाली बिल्डिंग मुझे सूट करती है, मैं अब इसमें एक सैम्पल रूम तैयार करता हूँ विद ऑल द एमिनिटीज़, डाइनिंग स्पेस, कॉमन एरिया, एक छोटा पढ़ने का एरिया, एंड देन यू कैन कम इनटू दिस बिजनेस. इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस, इंडस्ट्री बढ़ रही है. मतलब चाइल्ड कमिंग फ्रॉम टियर 2 सिटी हैज़ टू हैव. And pipe is very heavy ना, 9, 10th, 11th, 12 सर में आप कितने मैं बच्चे ऑल बता इंडिया. दूंगा, एंड ऑफ द डे ये हम जो कहते हैं ना कि मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में हूँ, मैं प्रोफेशनल, वी आर इनटू अकोमोडेशन सर्विसेज And everyone needs it. एंड एवरीबडी. सो मेरा जो ब्रॉडर पिक्चर है इस पूरी इंडस्ट्री का इज़ अकोमोडेशन सर्विस. Great. चाहे आप नर्स हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल, आपको एक क्यूरेटेड लिविंग स्पेस चाहिए अपने लिए और आपके बजट के लिए. तो मैं वो कंपनी हूँ जो आपके लिए एक प्रोडक्ट क्यूरेट करूँगा. चाहे आप, मैं नर्सिंग भी कर रहा हूँ, नर्सिंग एकोमोडेशन भी कर रहा हूँ गुड़गांव में, Right. एक हॉस्पिटल के साथ. उनकी डिमांड है बिकॉज दे वांट टू हैव द नर्स कैप्टिव. Right. ठीक है, और उनको मैं सारी फैसिलिटी जैसे एक आपको किसी को दे रहा हूँ, फूड दे रहा हूँ, लॉन्ड्री सर्विस दे रहा हूँ, एवरीथिंग. Right. तो यू हैव टू change your mindset and say that I'm a accommodation service provider. Right. You come to me and you give me a budget and I'll curate a product around it and offer you that. So if you have a budget of 12,000, I have a bed for you. If you have a budget of 30,000, I have a product for you. Right. So keeping that whole tangent will be the best part. Sir, इतने सारे डिस्कशन ऑन यूनिलिव एंड को लिविंग स्पेसेस, इतने एंगल्स को समझते हुए, एक आउट ऑफ अ क्यूरोसिटी देयर इज़ अ थॉट, मे बी इट्स द फ्यूचर कैन बी देयर. आपके किसी एक प्रॉपर्टी में देयर आर फ्यू बेड्स अवेलेबल, हर समय पे 5-6 रह रहे हैं, क्या पता कई बार एक प्रीमियम रूम भी अवेलेबल है फॉर मे बी फॉर 5 or 10 days, बट आप देते हैं इसको लॉन्ग टर्म रेंटल्स पे, नॉट ऑन अ पर डे बेसिस. बट क्या ऐसे होता है कभी कि वी टाई अप विद MMT और all these things, and because in my premium property, because working professionals are living, मैं एक ऑडिट पे गया हूँ 3 दिन के लिए नेहरू प्लेस, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम देहरादून. अब मैं होटल देखूँ मेरे को 3500 में मिले, मैं को लिविंग का देखूँ एक बेड अवेलेबल है 2200 में मिल रहा है फॉर एग्जांपल. Correct. इज दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस सेगमेंट करेंटली? So lot of these को हम भी see when I'm saying a accommodation service agreement, जो हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर बन जा रहे हैं eventually, will have to get into this hybrid model also. इसमें डेली चेक इन चेकआउट नहीं होगा लाइक अ होटल, बट ये सपोज मैं कहता हूँ आप 4 दिन नहीं, आप सपोज 10 दिन के लिए आ रहे हैं और आपकी एक इंटर्नशिप है या आप एक वर्कशॉप अटेंड करने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन स्टे विथ मी इफ आई हैव अ बेड. बट हाउ डू आई फाइंड इट? बिकॉज सो what happens is that you are always visible on the web. Right. You're always visible on your Google because your intensity of Google ad will come down, but you're still visible. राइट. So when you Google ki I'm looking for a hostel accommodation in Delhi, around Delhi, तो हम लोग पॉप अप हो जाते हैं. राइट. Then generally people call up and ask कि यार मेरी इंटर्नशिप है. हमारा सबसे शॉर्टेस्ट स्टे अगर हम लोग कहें इज़ 1 month. राइट. तो उसमें वो पूछती हैं कि यार मैं 1 महीने के लिए आ रही हूँ, सो इफ़ यू कुड एकोमोडेट मी, देन वी टेल देम कि यार देख
1 month is okay and this is the room, there is no other room available, मतलब there is a fixed उसको वो चॉइस नहीं रहता है कि यार मुझे ये वाला कमरा चाहिए, यही अवेलेबल है तो उसी में आपको ठीक है adjust सर. करना कमिंग टू दिस इजी डे सुपरमार्ट वाला कंसेप्ट, यू नो दिस बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ 3 to 4% मार्जिन, हाई वॉल्यूम बहुत गेम टफ एफिशिएंसी, बहुत टफ बिजनेस है. राइट. एंड और इसमें एक्चुअली क्या था कि जब मैं सुपरमार्केट्स खोल रहा था उस टाइम क्लाउड स्टोर, ये जो होते हैं ना डार्क स्टोर्स नहीं थे. ये जेप्टो और इनका कॉन्सेप्ट नहीं था. या तो ये ऑनलाइन था और या वो फिजिकल ब्रिक एंड मोटर स्टोर थे. ऑनलाइन कंपनीज वर लूजिंग बर्निंग कैश टू मच बिकॉज पहली बात दे वर एक ना बिहेवियरल चेंज ला रहे थे सोसाइटी में कि लोग ऐप में अट्रैक्ट हों, लाइक ओला उबर वाली जर्नी थी. तो उसमें हैवी डिस्काउंट्स दे रहे थे और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे कि जितने ज़्यादा ऐप डाउनलोड हों दे गेट हुक टू ऑनलाइन बाय. तो अमेजॉन वाज द क्लासिक एग्जांपल. इन फ्यूचर ग्रुप व्हाट सी, आप ब्रांडेड सामान रखकर PNG और ये HUL के उसमें तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट. व्हाट दे डू इज दे गिव यू मार्जिन्स इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपने 10 डब्बे तेल के बेचे तो 1 डब्बा तेल का आपको फ्री. सम कॉन्सेप्ट अराउंड दैट इज द एंटायर जर्नी. और वो 1-2% आपको कुछ मार्केटिंग इंसेंटिव देंगे ओवर द ईयर एंड ऑल. वो क्या करते हैं कि सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन प्राइवेट लेबल्स, आपके खुद के प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको बेटर मार्जिन मिलेंगे. ठीक है. तो आपने क्या किया, एक ब्रिटानिया का बिस्किट रखा और उसी शेल्फ में आपने अपना एक नटराज का बिस्किट रखा विच इज़ योर ओन ब्रांड. सो पीपल व्हेन दे कम एंड दे सी द प्राइस डिफरेंस. ठीक है. बट यू आर मेकिंग मोर मार्जिन इन नटराज, यू आर हार्डली मेकिंग एनी मनी इन द ब्रिटानिया पार्ट. सो that is where the margin comes. Right. So Kishore Biyani wanted to start off his aggressive private label business in Easy Day store, क्योंकि उसने देखा था कि हमारी जो पेनिट्रेशन थी Easy Day की वो बहुत दूर अंदर तक थी. मतलब वी हैड दोआबा बेल्ट पंजाब में तो वी वर इनसाइड. तो he wanted us to be the distribution center for his private labels, where you are manufacturing and then you are pushing it in your stores. And so this was the entire concept of acquiring brands and to increase your footprints, because then you become like an HUL, right, like any other so private labels has played a pivotal role in shifting, and many private labels at that time has become big brands. आप पढ़िएगा निर्मल उसका है on private label. Right. This guy is I read that book and how private label penetration would actually make money in your supermarket business. There is no way in a branded way in a supermarket you will make. It is all about your concept of private label. So the economics works around your private label. So this is important. And secondly क्या है, supermarket में ना एक औरत जैसे मैंने पीटर इंग्लैंड किया, आपने सपोज एक क्लस्टर लिया ईस्ट दिल्ली का, उसमें आपने एक 2000 स्क्वायर फुट का सुपरमार्केट खोला. उसमें आपको प्रोडक्ट वही रखना पड़ेगा जो आपके कस्टमर को चाहिए. आशीर्वाद का आटा, आप कोई मतलब समथिंग विच इज गोइंग टू मूव फास्ट, क्योंकि वो वॉल्यूम वाला बिजनेस है. So always think that who my customer is in any kind of business. Base यही रहता है, which catchment I am going to serve, right? अब आप देखो मैं 36 में रहता हूँ, तो there is a supermarket guy. He knows my buying because every month he is supplying me a set of mix of product. So he'll call my wife and say कि ये चीज़ें हैं मैं आपको भेज रहा हूँ. So he knows families taste, preferences, and he keeps that mix in his सर मैं किशोर बियानी सर का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, राइट, ऑन बिग बाज़ार पे. सो ही सेड इंडिया में आपको टारगेट करना था उस समय इस बिज़नेस के लिए मम्मी को
जो आफ्टर सेंडिंग यू स्कूल्स उस पीरियड टाइम में 10 से 1 बजे के बीच में जिनके पास टाइम है सुपरमार्ट जाने का, दैट इज़ देयर ओन टाइम ओन टाइम एंड देयर अचीवमेंट इज़ कि मैं 10,000 की चीज़ 8,000 में खरीद के लाई, सो वो जो 2,000 का सेविंग है दैट इज़ देयर अचीवमेंट, राइट, Exactly. वेयर दे टारगेटेड। तो उनके 3 कंसेप्ट उन्होंने बताए कि इंडिया में आप आलू, प्याज और तेल किसी घर में पहुंचा दो सस्ता, राइट, एंड देन बिल्ट अप योर मार्जिन्स ऑन शू पॉलिश नहीं चाहिए थी बट क्योंकि वहाँ गया तो शू पॉलिश भी उठा ली, शू शाइनर भी उठा लिया और थिनर भी उठा लिया, राइट। पेप्सोडेंट के साथ साथ वो बड़ा वाला उठा के एक ब्रशेस भी उठा लिए, बच्चे का Correct अलग है। उठा लिए, सबका अलग उठा लिया और 6 Exactly. का सेट ले लिया, घर में 3 ही लोग हैं। तो ही बिल्ट ऑन दैट कंसेप्ट कि जो उनका टाइम था उनके लिए कुछ था नहीं, तो हमारी पूरी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड The एवरी mother. एड ऑफ द टीवी, सबसे सस्ता, Exactly. सबसे सबसे सुंदर, पर and photos of the moms and right the decision makers, Yeah, and yeah. they portrayed them as the decision makers, not the fathers. So actually अगर आप एक बिग बाजार का मिक्स देखें, देयर मार्जिन वाज इन गारमेंट्स। Agree. आप समझ रहे हैं, जो गारमेंट वो बेच रहे थे ना, दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इनसाइड बिग बाजार स्टोरी, बिकॉज मार्जिन आपको गारमेंट में ही डेवलप हुए। Right. FMCG वाज पार्ट ऑफ दैट जर्नी। Right. आप आए, आपने खाना तो ले लिया, चलो एक अच्छी शर्ट भी ले लूँ, Right. एक अच्छा या बच्चों का ट्राउज़र का, तो देर वॉज अ बिग सेक्शन ऑफ गारमेंट विच वॉज पार्ट ऑफ दैट। उसमें कॉस्मेटिक्स भी थे उसमें, बिकॉज मार्जिन्स वर इन कॉस्मेटिक्स, मार्जिन वॉज इन गारमेंट्स, मार्जिन वॉज इन दीज आइटम्स Right. विच वॉज या Sir, because you understand real estate much deeper, one final question on the supermart is like we always listen about कि बिग बाजार इस वजह से फेल हो गया, डी मार्ट इस वजह से फेल नहीं हुआ, और उन सारे रीजंस में एक रियल इस्टेट बहुत बड़ा फैक्टर आता है, बिकॉज डी मार्ट हैज़ ऑलवेज देयर ओन लैंड्स, ओन स्पेसेस, ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर एज बिग बाजार मतलब आप ये keep कह रहे हैं on कि डी मार्ट वॉज अ एसेट हैवी। asset heavy. They Right. see both the concepts are very different in and the mindset जो था। बिग बाजार ने एसेट लाइट मॉडल पे ही गया, बिकॉज आप देखें जब डी मार्ट और बिग बाजार शुरू हुए थे तो आपको बिग बाजार के फुटप्रिंट्स ज़्यादा थे, Absolutely. डी मार्ट के कम थे, बिकॉज इंडिया में लैंड खरीदना आसान नहीं है, ठीक है, और वो हर वक्त आउटस्कर्ट्स में जाते थे टू मेक अ शॉपिंग डेस्टिनेशन। तो वो जब बाहर जाते थे दे कुड पिक अप चीपर लैंड, उसमें उन्होंने बिग बॉक्स का कल्चर बनाया Right. डी मार्ट। Right. बट अगर आप अब देखें तो पीपल आर शिफ्टेड इनटू ज़ेप्टो बाइंग यार, Right. कन्वीनियंस। अब कौन जाना चाहता है एक डी मार्ट जो 10 किलोमीटर दूर है, चलो टियर 2 सिटीज़ में लोगों के पास टाइम है, बट मेट्रो सिटीज़ में टू ट्रैवल टू अ डी मार्ट बिकम्स अ वेरी वेरी और मेरा उसमें एक सर थर्ड एंगल है, ये वाला जो सक्सेस फैक्टर है ना, वो लोग उनकी वैल्यूएशन और नेटवर्थ के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। एनी डे जिसके पास लैंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन नेटवर्थ ज़्यादा होगी, हो गया। बट ऑन द ऑपरेटिंग बिजनेस साइड जो 3 का सामान बेच के 4 में वो बेच रहा है, वो भी 3.5 का सामान खींच के 4.5 में। तो जो ऑपरेशनल मार्जिन, ऑपरेशनल बिजनेस इज सेम, सेम तो जिसका ज़्यादा वॉल्यूम और फास्ट बिका दे विल सर्वाइव। एग्जैक्टली। तो डीमार्ट ने अपनी जो आईपीओ भी निकाली थी, आई थिंक वो ये एसेट की वजह से निकाली ना, बिकॉज लैंड था, उन्होंने अपने बैलेंस शीट में उसको रिफ्लेक्ट किया। दैट इज एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली आज आप कोई भी लैंड एक्स प्राइस पे खरीद रहे हो, नोएडा में पहले 3,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे अपार्टमेंट मिल जाते थे, ठीक है, आज वो 15,000 तक पहुंच गए। मैंने सर 3800 में खरीदा था। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ रियल एस्टेट, जो कि अगर आप अपनी बैलेंस शीट में या अपने पर्सनल, यही आपका नेटवर्थ बन जाता है। सर मैं फ्यू फाइनल क्वेश्चंस अराउंड दिस वुड बी, हमने बिजनेस ओनर के एंगल से बात करी, बिजनेस की बात करी, और बिजनेस कैसे चलता और कैसे नहीं चलता इस पे बात करी। बस ये शायद ये सब फ्रंट एंड स्टोरीज हैं, बैक एंड पे सारा बिजनेस, सारे मैथमेटिक्स, सारे मैट्रिसेस, सारे ऑपरेशन चला रही है आपकी टीम। सो हाउ बिग इज योर टीम एट यूनिलिव? We are today approximately about 100 people who are directly employed by Unilever. Right. We would be having support agency, housekeeping staff, guards, security staff, right. and all, which would be another additional about 70-80 people who are supporting us in any laundry service. तो अगर आप economics देखें तो आप you are a very big employment generator. Absolutely. See, any fresh graduate can join us. He gets exposure on every field: marketing, social media, interaction with customer, sales,
फाइनेंस, सारा उसको मिल जाता है. सो ये एक आप कह दो एक छोटा MBA कोर्स ही है, क्रैश कोर्स. Absolutely. And working in a start like एंड अ स्टार्टअप है, हाँ, लीन टीम है, absolutely. एंड यू आर डूइंग कोल्ड कॉल्स बिकॉज जो लीड्स आई हैं आपके पास, आपने कोल्ड कॉल करके बोला यार ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपका कस्टमर ने आपको कॉल किया, आपने उठाया और आपने अपने एमिनिटीज़ बेचे. यू आर ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, राइट. देन यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ योर एड्स, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ योर फाइनेंस टीम कि यार कितने में बेचूँ, क्या डिस्काउंट दे दूँ. Right. सो ये एक मल्टीटास्किंग है जो एक, मैं तो कहता हूँ ये इट्स मोर लाइक एन MBA फॉर एनी स्टूडेंट. और स्टार्टअप में ना आप किसी फंक्शन को नाम नहीं दे सकते. मुझे लगता है अगर कोई आपका जो बेस्ट एम्प्लॉय है, आप कोई भी 5 एम्प्लॉयज़ अपने सोच के देखो, यू कैन नॉट डिफाइन देयर रोल. कि अगर वो आपसे आके पूछे कि मैं क्या फंक्शन में हूँ या मेरा जॉब, आप बोलोगे भाई जो फटा पड़ा है, टू सॉल्व दैट इज योर जॉब, राइट. एंड टू दैट team and resources, they are living a life of an entrepreneur, right? They are learning how to build a business, how not to build a business, because there is a book from Pankaj Goyal called How Not to Start Up. He has mentioned 500 examples of failed startups. Everyone talks about PayPal, everyone talks about say Uber, Ola nowadays. Many people don't know Flipkart से पहले कितने fail हो गए और वो क्यों fail हो गए. So they have a first-hand experience. Maybe a MBA college may or may not teaching all these things practically, right? No. So this is a great exposure. I think every person, maybe abhi to internship is a must and all people are doing, but every person in their life should work directly, maybe in a with a founder's startup. office or with a startup at least for 1 year, Exactly. and know the pains without any expectation yeah, because you have a very limited resource. You have to judicially allocate them. You can't be, you know, careless और careless कि यार मैं सुबह आज नहीं जाऊंगा. ऐसा नहीं है, आपको आना पड़ेगा. You know, so that discipline of reporting to a disciplined way of life comes through a startup only. Absolutely. तो जो कि बहुत important है for every child or budding MBA और any जो हम रिज्यूमे में लिखते थे ना, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, वो सब वहीं पे आता है. बिकॉज इफ यू गो टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्कड इन ब्लू डार्ट, नो ऑफेंस टू दैट, बट you will have a good team, a good number of resources for every task. You have a limited task to do. You will excel in that over a period of 2 to 3 years, right? And you have a responsibility, the very streamlined things, no offense. But when I entered delivery, ओपन फ्लोर, पहले दिन मैं गया, मैंने देखा कहाँ बैठना है मुझे, मेरी सीट कौन सी है, कोई सीट नहीं है. अब जो सीट खाली है बैठ जाओ. अब वहाँ पे एक दिन HR का बंदा बैठा था, एक दिन मार्केटिंग का, एक दिन फाउंडर खुद वहाँ पे आके बैठा है. नोट पैड चाहिए, नोट पैड नहीं है, डेस्क पे ही मार्कर से लिखे जा रहे हो, वही सारी स्ट्रेटेजी, डोंट रब इट, नीचे सबने हैशटैग में लिखा हुआ है. सो देन यू अडॉप्ट टू दैट कल्चर, जो वहाँ पे फिर सीधी फंडिंग आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, एंड यू आर सीइंग कि कैसे कैश फ्लो, देन दैट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर इज बिल्डिंग इनसाइड यू. और मेरे हर किसी के साथ ये हो रहा है. इंटर्न्स अगर डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम कर पा रहे हैं एक अर्ली एज में, तो दे मस्ट बी सीइंग के व्हाट इज एक्चुअली ए पेन. ठीक है, क्योंकि आप बहुत जगह पे सक्सेस स्टोरीज और ग्लैमराइज स्टोरीज देखते हो और आप इंस्पायर हो जाते हो, दैट इज गुड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू लिव थ्रू दैट. नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आई वर्कड इन बोथ द स्फीयर्स. Walmart was a very organized, very process driven company जिसमें आपका एक रोल है. Right. आपको एक रोल दिया गया है, वही है. बट इन स्टार्टअप देयर इज नो डिफाइंड, यार मेरे को आज सेल करनी है तो कल फाइनेंस पे भी बैठना है, कल मार्केटिंग, अपनी रील्स भी देखनी है, ये सारे you have to be. और ये मज़ा मतलब इट्स अ लर्निंग एंड दैट्स. और इसमें just last part to it, right? I know from these 100, these 15, these 20 are my key people. I cannot lose them. They are irreplaceable. They are impactful, and I want them to retain for longer period of a time, right? So how, as an organization, as a founder, I think that okay, money is one thing. They'll get good salaries everywhere, but what I am building for them, for their mental health, for their stickiness to the organization, for their loyalty, and then also when organization grow from 1,000 bed to 3,000, and ultimately one day Unilever will also be at 1 lakh beds and all. So whether my employee has grown with me or not, right? So those are the factors wherein we keep on talking a lot, we keep on doing those discussions, right? And that is where there's a part of a stock option come into picture, right? Okay, this is I feel personally this is the only tool in the industry
एज अ एम्प्लॉय और एज ए एम्प्लॉयर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 करोड़ से 100 करोड़ की बनी, एम्प्लॉय की सैलरी शायद 10 लाख से 20 लाख हो जाएगी, बस 10 लाख से 1 करोड़ नहीं होती, और वो कंपनी जब 10 करोड़ से 100 करोड़ की बनती है, तो एक ईसॉप या स्टॉक ऑप्शन या कोई ऐसे टूल्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हम देते हैं, दैट डिफाइंस अ पिक्चर कि एम्प्लॉय को पता है यार, अगर कल को यूनिलिव या XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब ये ऑर्गेनाइजेशन IPO आएगा ना, या जब ये ऑर्गेनाइजेशन 200 करोड़ की होगी ना, ये जो मेरे स्टॉक है ना 1 लाख रुपए का, ये 2.5 करोड़ का हो जाएगा। तो वो जो सेंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन है ना, उसने इंडिया में तो एट्रिशन बहुत हाईएस्ट लेवल पे कंट्रोल करा है। मे बी स्टैंजा लिविंग, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट फेज। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि whenever I am taking an interview of a person joining Unilever, तो there are two things I tell and make it a point to explain him. जॉब में वेल्थ क्रिएशन नहीं है, ठीक है, ये मैंने बाल सफ़ेद कर लिए नौकरी कर करके, ठीक है, मेरे मतलब वॉलमार्ट भी काम किया, सारी जगह काम किया, वेल्थ नहीं क्रिएट हुआ आपका। आप सोचो ना, आपको सैलरी टैक्स कट के मिल रही है, ठीक है, उसके बाद आपके खर्चे ही हैं, राइट, ठीक है, सेविंग नाम से तो आप बहुत कम कर सकते हो, यू नो, एथिकली। एब्सोल्युटली। अनएथिकली आप कुछ कर रहे हो तो आई कांट से एनीथिंग। आई टेल देम दैट come to me for wealth creation. Don't come to me for 9 to 5 job. Number one, if you want to create wealth with me, stick with me for 5 years. I will make sure that this would be your last job, because after that you can easily go in for your retirement, or you will have enough wealth for your child's education. एक फादर या मदर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज चाइल्ड, कि यार मेरे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाए, राइट, उस पर, और एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो रही है डे बाय डे, दैट आपको अपनी सैलरी में से बहुत टफ होता है। ठीक है, आप कर रहे हो, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट एक रहता है ना यार कि माई चाइल्ड शुड अचीव व्हाट आई हैव नॉट अचीव इन माई लाइफ, उसको देने के लिए देन यू नीड रिसोर्सेज, and that wealth creation is in startup and is in ESOP only. ये कहीं और नहीं मिलेगी। मैं उनको यही कहता हूँ, just put your heads down and let's work for next 5 years. अगर we crack this, मैंने कहा यार, what wealth will I take that I don't distribute it among all the people who stood by me? Right. So and you come with a talent, utilize your talent to your best ability, that यार मैंने यूनिलिव या इस कंपनी को एक मुकाम तक ले जाना, और देन आई एम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। और पहले तो स्टोरीज, इतनी सक्सेस स्टोरीज पब्लिश नहीं होती थी। आज तो कोई गूगल करेगा, इंडिया में लगातार हर साल 2000 करोड़ से ऊपर का ESOP बायबैक हो रहा है। आप स्विगी की स्टोरी पढ़ लो, फ्रेशवर्क्स की स्टोरी पढ़ लो, पेटीएम देख लो, जिसके ब्रांड के नाम सुने में, अनब्रांडेड में, रेजर पे की स्टोरी सुन लो, जोमेटो देख लो। मेरे ख्याल से एक कंपनी से फिर 100 स्टार्टअप्स निकल जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड वेल्थ, दे हैव बिकम एंटरप्रेन्योर व्हाइल वर्किंग विद द स्टार्टअप्स इटसेल्फ। सो आप यूनिलिव से या XYZ एनी स्टार्टअप्स कैन create 100 of new entrepreneurs over the years, and how they will start a startup. स्विगी से निकल के कितने स्टार्टअप्स बने हैं, फ्लिपकार्ट से निकल के नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बने। so many examples you can take, but eventually it is all the decision of an individual, yaar, ki wo what does he want in order. Right, sir, thank you so much, sir, for your time and the insights. Really pleasure. Being a Saturday, I was a little free, and I was looking forward ki yaar, one should in these podcasts help me to also promote Unilever in a way. And also I come across such beautiful people who are doing their effort to, you know, do this. This is also a new kind of business entrepreneurship, and very excited. Thank you so much. What we have learned, there are a lot of learnings today for me personally, for the audience as well, right? On different verticals which we have not known from Deeps, right? So quick takeaways, if I'll tell, like, to success in a co-living space, it's operation and scales with customer delightness, not satisfaction. I will just go one step ahead. Satisfaction is our core duty. Customer should be delighted. Yeah. For supermarts,
margins are low, play on volumes, private labels if you can win, but yes, we have to keep our eyes on dark stores, Zipto, Blinkit. अभी बहुत सारे दुकानदारों ने स्टार्ट कर दिया सर, they keep daily check the prices on Blinkit, Zepto and Flipkart. Correct. And then put a hoarding outside their Exactly, shops. exactly. Right? And then they are doing a comparison. And in malls, know your locality, like and KYC is know your consumer. know your catchment. Yeah, know your catchment. और 5-7 किलोमीटर में क्या है, क्या है? शायद जो मॉल साकेत में सक्सेसफुल होगा, शायद वो मॉल डासना में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पाएगा। और जो मॉल गाजियाबाद में सक्सेसफुल होगा, शायद वो मॉल साउथ दिल्ली या ग्रेटर कैलाश में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो बिकॉज ब्रांड मिक्स अलग है, लोगों की अप्रोच अलग है। राइट। अब अगर कोई मॉल जाएगा तो उसको समझ आ जाएगा, हाँ इस ब्रांड के साथ ये वाला आउटलेट क्यों है और इसके साथ ये वाला। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इनसाइट्स। I we learned a lot, and I believe for the audience it was a great insights on how to build business, how to not just build but to take business to the next levels, what actually customer service means. And I personally feel customer satisfaction is one thing which is the history now. We should work on customer delightness, right? Delightfulness. How and why the customer will be delighted, and stick to us only, right? There are always competitors and there are always options in the world. So what makes us best? We need to keep not on a fortnight or a quarterly reviews, but at least on a daily basis. और ये होगा तब जब मैं अपने कस्टमर से बात तो करूँ। कई बार कस्टमर्स बात करना नहीं चाहते हैं, बट करते हैं। एक्चुअली काफ़ी कस्टमर want to be heard. Yes. And I make it a point that be approachable. And this is also an art. Yeah. Right? Customers. यार अच्छी बात भी बोलेगा, खराब बात भी बोलेगा. So you have to deal with both of them. Not get discouraged, but get encouraged by your negative feedback. Thank you, sir.